Hello everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel KS Academy One Step to Success. I am Payal. Today we are going to discuss Hereditary and Evolution Part 2, in which we are going to talk about evolution. Before moving further, don't forget to subscribe my YouTube channel and like and share. And we are also available on Facebook, so you can join on Facebook also. So let us start with the evolution. Evolution is a sequence of gradual change which takes place in a primitive organisms over a millions of years in which new species are produced. So it means that कि according to the environment, according to the time, जो भी evolution हुआ, जो भी changes occurs होते हैं organisms में over the millions of years. So that is meant by the evolution. So these are the two types, acquired and inherited traits. So one acquired traits, it means that these are the traits which are developed in an individual due to the special condition. It means that कि कुछ condition change हो रही है हमारे surrounding में, so उसके according जो हमारे अंदर में changes आ रहे हैं, that is meant by the acquired traits. So they cannot be transferred to the progeny. So ये जो है ये transfer नहीं होते अपने offspring को या फिर generation to generation ये transfer नहीं होता. Then they cannot be direct evolution, low weight of the starving battle. It means that कि जो evolution हुआ है वो directly नहीं होता, कि वो डिपेंडेंट नहीं होता कि भाई हाँ अभी जो इवोल्यूशन आया है तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में भी वो इवोल्यूशन कैरिड आउट होगा, वो उन पे डिपेंडेंट रहेगा कि वो उसको कैरी करते हैं या नहीं करते. Then next one is inherited traits. It means that कि these are the traits which are passed from the one generation to the next generation. It means that कि जो evolution हमारे जीन्स में आता है, जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में भी देखा था कि जो इवोल्यूशन इन ह्यूमन बींग्स था जिसमें हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे. देन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ जो अनवांटेड हेयर्स थे वो रिमूव हो गए, जीन्स चेंज हुए, जो पहले चार इस पे चलते थे, दो हाथ और दो पैर पे, और देन इवोल्यूशन के बाद में क्या हुआ कि कंप्लीट मैन जो है वो अपने दो पैरों पे चलता है, हाथों का काम सिर्फ काम करने के लिए और खाना खाने के लिए यूज करते हैं. सो इस तरीके से जो इवोल्यूशन हुआ जीन्स में चेंजेस आए हैं, जो बैकबोन थी वो बेंडेड थी कंप्लीटली, वो स्ट्रेट हो गई. सो इस तरीके से जो इवोल्यूशन है डेट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेड ट्रेंड्स और इट विल पास थ्रू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. They get transferred to the progeny and they are helpful in evolution, and examples are eye color, hair color. So these are the according to the surrounding, these are the changes happened in the human beings or whatever they are present around the organisms, and they are passed from the one generation to another generation. So ways by which the specimen takes place, कि ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिससे ये changes occurs होती हैं. So specimen takes place when the variation is combined with the geographical isolation. कि जैसे ही हमारे सराउंडिंग में कुछ चीजें चेंजेस होती है, चेंजेस इन द सेंस कि वोल्केनो आ गया या फिर कुछ भूकंप आ गया, सो उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस आते हैं, सो वो इवोल्यूशन जो हुआ, सो इट विल मीन्स द जियोग्राफिकल आइसोलेशन. So genes flow. First one is a genes flow. So occurs between the population that are partially but not completely separated. It means that कि जैसे कि जो हमारे एक ही एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे बंदर, सो उनमें जो जीन्स में इवोल्यूशन आया, राइट. सो तो वो जीन्स इट मीन्स दैट कि उनकी जो बैकबोन थी वो कम्प्लीटली कर्व थी. देन जो टेल बोन थी वो टेल थी, तो वो भी हम ह्यूमन बींग में अभी है नहीं, बट टेल बोन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग, राइट. सो इट इज अ क्या कह सकते हैं हम उसको कि एक एविडेंस है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, राइट. तो ये जीन्स में जो चेंजेस आते हैं डेट इज मीन बाय द जीन्स फ्लो. So genetic drift. Genetic drift, it means that it is a random change in a frequency of allele genes pair in a population over the sequential generation. It means that कि जो reproduction होता है, so reproduction के दौरान जो भी genes formations होते हैं, then combination होता है, तो it will be changed due to the two different genes are combined together and form a new progeny. So it will be passes from one generation to another generation. Then next one is a natural selection. This process by which nature selected and the consolidate those organisms which are more suitable, adapted and possess favorable variation. It means that कि जो हमारा surrounding है, so हमने देखा है कि अमेरिका, इंडिया, then जापान, then चाइना, so इनके जो हैबिटेंट्स है इनके अकॉर्डिंग उनका एक इवोल्यूशन है. so डिपेंडेड ऑन आवर नेचर, कि हमारे नेचर के थ्रू हमारा जो इवोल्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा.
Then geographical isolation, it caused the mountain range river geographical isolation lead to the reproductive isolation due to which there is no flow of genes between separated group of population. It means that कि जैसे हमारा इंडिया है, यहाँ पे जो हमारा हिमालय साइड का पोर्शन है इंडिया का, सो वहाँ पे जियोग्राफिकल चेंज है बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बट द जीन्स आर नॉट डिफरेंट. जीन्स मीन कि वहाँ के जो ह्यूमन बींग्स है दे आर कंप्लीटली लुक लाइक अवर्स, हमारे जैसे ही दिखेंगे, हमारे जैसे ही रहना खाना पीना सब कुछ हमारे जैसा ही होगा, बट सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा कि वहाँ का जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो है वो डिफरेंट हो गया. इट मीन्स डेट कि वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रीजन है तो उनका हैबिटेंट अलग हो जाएगा. देन हम साउथ की तरफ आते हैं तो वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, सो टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द हिमालय रीजन, सो यहाँ का जो हैबिटेंट होगा वो डिफरेंट होगा. सो जिस तरीके के जियोग्राफिकल आइसोलेशन के थ्रू भी नंबर ऑफ इवोल्यूशंस अकर्स होते हैं. नेक्स्ट वन इज अ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन. इट मीन्स डेन की जो डेफिनेशन है इवोल्यूशन की पर्टिकुलर वो साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने दी थी. सो उन्होंने इट वॉज अ इंग्लिश geologist, biologist and neurologist, and he is the best known for his contribution to the science of evolution. इन्होंने complete evolution किस तरीके से हुआ है तो इन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है या फिर मैक्सिमम जो रिसर्च है वो इन्होंने किया है. सो in 1859, Darwin published his book One, The Origin of Species, explaining the theory of evolution. And Darwin theory of evolution described how the life evolved from the simple to more complex form, whereas a Mendel experiment explained the mechanism of inheritance of the traits from one generation to the next. कि जो डार्विन है उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ फ्रॉम टाइम चेंजेस के अकॉर्डिंग. सो पहले कौन सा जानवर थे या फिर कौन से एनिमल्स थे, देन उसके बाद में कौन आया, देन उसके बाद में जो इवोल्यूशन हुआ अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर या फिर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग चेंजेस या फिर नंबर ऑफ जो हमारे जियोग्राफिकल चेंजेस के थ्रू जो भी इवोल्यूशन हुआ उन्होंने कंप्लीट ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस इस बुक में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है. वेयर एज जो मेंडल थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ जीन्स के ऊपर किया था, जिन्होंने बताया था कि किस तरीके से जीन्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होता है. देन evolution is basically the generation of diversity and the shaping of the diversity by means of an environment selection. Over the period of time, variation in the species by advice several advantage or merely an example of the genetic drift. So further changes in non-reproductive tissue are largely because of the environmental factor, not by the inheritance. देन वी कैन सी ऑन दिस पिक्चर कि जो पहले के जो इंसान थे उनके हाथ पैर जो थे एक तरीके से एक लेंथ के थे, राइट. तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि हमारे बॉडी को एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट कैसी है, सो हमारे हाथ के जो फिंगर्स है सो बहुत लंबे लंबे थे, सो दे कैन क्लाइम ऑन क्या कहते हैं पहाड़ी पे वो आसानी से क्लाइम कर सकते थे. बट नाउ अ डेज की उतनी ज़रूरत नहीं है. सो द ज़रूरत के हिसाब से जो जेनेटिकल चेंज आना, सो वी कैन सी ऑन दिस पिक्चर डायरेक्टली कि इस पिक्चर में देखो यहाँ पे हाथ की लेंथ और पैरों की लेंथ जो है ये जो स्केलेटन है एक तरीके से पूरा सेम है, राइट. और जो स्ट्रक्चर ऑफ आवर हाथ के हमारे हथेली के और पैर के जो हमारे तलवे हैं उनके भी स्ट्रक्चर नियर अबाउट सेम है. देन नेक्स्ट जनरेशन में जस्ट थोड़ा सा बेंड है, देन लेंथ जैसे कि वैसी है, देन हाथों का स्ट्रक्चर कम हो गया है, देन इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ और एक कंप्लीट मैन जो है जिसका हाथों का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उतना ही है जितने की जरूरत है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ जेनेटिकल चेंज. Then study of the process of evolution of human being species that most likely all human beings belong to the single species that evolved in Africa continent over period of the time spread across the world in the phases. The complex organ and the another features most likely evolved and adapted to the cope of with the changing environment with the whole phenomena is known as the evolution. Example, feathers of the bird are believed to be have been initially evolved for workman but later adapted for the flight, राइट. इट मीन्स डेट की जो feather ऑफ द बर्ड है, राइट, जो बर्ड है वो अपने पंखों से उड़ते हैं बट उसका इवोल्यूशन इस तरीके से यूज किया गया कि आज के डेट में फ्लाइट में भी feathers का यूज किया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन.
देन एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन। अब एविडेंस हमको कैसे पता चला कि भाई इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ, तो कुछ ऐसे एविडेंस है, प्रूफ है जो हमको मिले रिसर्च के थ्रू, जो हिस्टोरिकल रिसर्च होते हैं, देन जियोग्राफिकल रिसर्च होते हैं, उनके थ्रू पता चला है, कुछ प्रूफ ऐसे मिले हैं कि हमें ये पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज है वो मंकी थे, या फिर उनके भी पहले कोई एनिमल्स थे, या फिर उनके भी पहले कोई कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड था, एक अलग ही वर्ल्ड था, किस तरीके से वर्ल्ड था और क्या क्या चीजें अवेलेबल थी। देन these are called as a homologous organ or heterologous organ. So first one is an homologous organ. Morphological and autonomical evidence, these are the organs that have same basic structure, plan and origin but different function. Homologous organ provide evidence for the evolution by the telling us that they are derived from the same oscillator. Example ले लेते, four limb of horse running, जो अपने चारों पैर पे दौड़ते हैं. So these are the एनिमल्स हु प्रेजेंट इन प्रीवियस ऑफ अवर वर्ल्ड, अपने वर्ल्ड के भी पहले दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर अवेलेबल, बट वो अभी नहीं है, बिकॉज दे आर सेम फंक्शन है अभी के भी एनिमल्स में, जैसे कि हॉर्स का जो वो कह रहा है कि अभी का भी जो हॉर्स है सेम फंक्शन है एज प्रीवियसली, बट उनके जो एविडेंस मिले, क्योंकि वो जो एविडेंस मिलते हैं स्केलेटन फॉर्म में मिलते हैं या फिर अनदर किसी फॉर्म में मिलते हैं. देन विंड्स ऑफ द बैट फ्लाइंग, जो बैट फ्लाइंग होते हैं उनके भी सेम प्रकार की प्रोजेनी प्रेजेंट थी बिफोर अवर वर्ल्ड. सो पाउ ऑफ द कैट, then walk, stretch, attack has same base structure but perform different function. जो प्रीवियसली थे उनके कुछ फंक्शंस ऐसे थे जो डिफरेंट तरीके से करते थे. और देन इवोल्यूशन के बाद में, जैसे बैट का हम एग्जांपल ले लेते कि अभी जो उनके फेदर्स है अटैच विद देयर हैंड्स, और स्लाइटली कि उनके जो फेदर्स है उसमें से ऐसे नोकीला पार्ट या फिर ये कह सकते कि नाखून का थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकला है, फॉर दैट कि वो क्लाइंब भी कर सकते हैं या फिर किसी चीज को होल्ड करके रख सकते हैं, राइट. इस तरीके से इवोल्यूशन अभी हुआ है. देन analogous organ, these are the organs that have a different origin and structural plan but the same function. Example, analogous organ provide the mechanism of evolution. Wings of the bat has elongated finger with the skin folds, and wings of the bird has feathery covering along the arms, has different basic structure but they perform similar function. Then fossil, the remaining and the recoil of the dead organism of the past, that is called as a fossil. So कुछ evidence हमको कैसे पता चलता है fossils में, जो जमीन के अंदर गड़ जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे वोल्केनो आ गया, so वो पूरी जो प्रोजेनी थी या फिर पूरी जो एनिमल किंगडम था या फिर जो वर्ल्ड था वो कम्प्लीटली खत्म हो गया, एंड देन वो किसी चीज के अंदर दब गए. सो फिर जब हम खुदाई करेंगे या फिर कुछ रिसर्च करेंगे, देन हमको वो एविडेंस मिले, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर द फॉसिल यूज्ड, या फिर दीज आर द प्रूफ फॉर द एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन. देन कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फोर लिम ऑफ फ्रॉग, राइट. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि फोर लिम ऑफ जो फ्रॉग है कि फंक्शन सेम है बट द ओरिजिन उनका अलग है, कि जैसे कि लिजर्ड का फोर लिम है, देन बर्ड का फोर लिम है, देन ह्यूमन बीइंग का. सो सभी के जो फोर लिम्स है, हमारे जो हाथ है, सभी के हाथों का काम एक ही है, बट इन बर्ड उनका काम क्या है, फ्लाई करने का. देन फ्रॉग में सेम फंक्शन है कि वो हाथों का यूज करते हैं या फिर खाना या फिर क्लाइम करने के लिए यूज करते. देन लिजर्ड भी हाथों का यूज क्लाइम करने के लिए करते अलॉन्ग विद देयर लेग्स, बट इन ह्यूमन बींग्स वो क्लाइंबिंग के लिए यूज नहीं करते, वो बाकी काम परफॉर्म करने के लिए या फिर खाना खाने के लिए इस तरीके का परफॉर्म करते. देन होमोलोगस ऑर्गन, इट मीन्स डेट की सेम ऑर्गन है, सेम फंक्शन है, बट अकॉर्डिंग टू द देयर स्ट्रक्चर और अकॉर्डिंग टू देयर ये वो चेंज होते जा रहा है. देन एनालॉगस में जैसा विंग ऑफ बर्ड, देन विंग ऑफ इंसेक्ट, राइट, दोनों का काम उड़ने का ही है बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, राइट. दैट इज कॉल्ड एज अ एनालॉगस ऑर्गन. Then evolution and classification. Both the evolution and classification are interlinked. Classification of species is reflection of their evolution relationship. So they more characteristic two species have in a common, the more closely they are related. The more closely they are related, the more recently they have a common ancestor. The similarity among organisms allows us to group them together and
डू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक। इट मीन्स डेट कि जो इवोल्यूशन हुआ और उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हुआ। अब वो कैसे कि जो अभी के हम लोग जनरेशन देख रहे हैं, सो ह्यूमन बींग्स आर लिव इन हाउस, राइट। सो उनका एक क्लासिफिकेशन हो गया एरिया वाइज कि भी इस एरिया में पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स रहते हैं। देन पेड़ पौधे हैं तो उन पे इंसेक्ट्स रहते हैं। सो उनका जो इवोल्यूशन हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ कि उनका एक पर्टिकुलर रीजन क्रिएट हुआ। देन बर्ड्स है तो वो पेड़ों पे रहते हैं। देन जो एनिमल्स है वो जंगलों में रहते हैं। सो इस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन कि एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, देन वी कैन से दैट कि और कि डॉक्टर्स है तो डॉक्टर एरिया अलग है। सो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होते गया। देन इंजीनियर्स है तो दीज आर द इंजीनियर्स। सो दीज आर ह्यूमन बींग्स बट दे आर क्लासिफाइड, राइट। सो इस तरीके से ग्रुपिंग किया गया एंड देन क्लासिफाइड किया गया। Then fossils, the remains of dead plants or animals that lived in the remote past are known as a fossil. So various kind of fossils are there. So some example हम यहाँ देख लेते हैं कि भाई कौन से fossils थे अपने वर्ल्ड के पहले, कौन सा ऐसा वर्ल्ड था जिसके हमको एविडेंस हमको मिले हैं। So first one is अमोनाइट्स। सो अमोनाइट्स हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कुछ एक शेल लाइक स्ट्रक्चर है। देन इस शेल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हमको एविडेंस मिला है कि ये पहले प्रेजेंट थे। इसमें जैसे कि आज के डेट में जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है हमको सी साइड में मोस्टली मिलते हैं, राइट। स्नेल्स मिलते हैं। सो उसमें कुछ जीव जंतु जो रहते थे एक प्रकार से कि इंसेक्ट टाइप कुछ रहता था जो अपने सराउंडिंग में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता था फॉर आवर प्रोटेक्शन, खुद के प्रोटेक्शन के लिए एक होम लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते कि एक पर्टिकुलरली होम बनाता था, राइट। तो दीज आर कॉल्ड एज अ एमोनाइट्स। देन नेक्स्ट वन इज एन ट्रेबुलाइट। ट्रेबुलाइट तो ये एक फिश लाइक स्ट्रक्चर है जो हमको इनका स्केलेटन जो है वो मिला है, राइट। तो एक प्रकार का इंसेक्ट जो पानी के अंदर प्रेजेंट था, जो फिश के लाइक था, राइट। सो इनका भी कुछ एविडेंस हमको इस तरीके से मिला है कि प्रीवियसली कि सिर्फ इनका जो स्केलेटन है वो हमको कहीं दबा गड़ा सा मिला था, बिकॉज सो दे आर अवेलेबल बिफोर अवर वर्ल्ड, राइट। कि भाई इनकी जो प्रोजनी थी देन दे आर कंप्लीटली डिजास्टर, कंप्लीटली खत्म हो चुका था। देन आवर वर्ल्ड विल बी बिकम, उनके बाद फिर अपना इवोल्यूशन हुआ, अपना ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड्स आर फॉर्म्ड। बिफोर दैट कि हमारे पहले कौन थे, तो दीज आर थे। इनके कुछ एविडेंस जो है यहाँ पे पिक्चर्स में शो किया गया है। सो ये एक पर्टिकुलरली जो है कि हम ये कह सकते हैं कि दीज आर अवेलेबल बिफोर आवर वर्ल्ड बट नाउ दे आर नॉट अवेलेबल। डायनासोर्स, सो वी कैन नो दैट अबाउट द डायनासोर्स बिकॉज हमने बहुत सारी पिक्चर्स देखी हुई है, जुरासिक पार्क देखा हुआ है। सो उसमें हमने डायनासोर के बारे में पढ़ा है इन द सेंस कि देखा हुआ है कि डायनासोर्स कैसे थे, टाइप्स ऑफ डायनासोर्स, कोई वेजिटेरियन थे, कोई नॉन वेजिटेरियन थे। देन हमने बचपन से ये भी देखा हुआ है, सुना है कि कार्टून आता था, देन उसमें गाना बजता था, चिपकली के नाना है डायनासोर डायनासोर डायनासोर। सो दिस प्रकार के जो है कि डायनासोर्स भी जो थे। अभी ये जो पार्ट है कि भाई थोड़ा सा कॉमेडी हुआ उसको छोड़ दीजिए, अभी आप एक पॉइंट ले लीजिए बिकॉज ये आपके स्टडी में है। सो तो जो डायनासोर थे वो हमारे बिफोर द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड वो प्रेजेंट थे। तो इनके जो एविडेंस है वो किस तरीके से हमको पता चला कि इस प्रकार के डायनासोर्स थे, तो उनके जो स्केलेटन्स हैं वो कहीं पे दबे गड़े से मिले। सो रिसर्च के दौरान ये मिले और इनको स्टोर किया गया म्यूजियम में, डिफरेंट म्यूजियम में, और इनके बारे में और रिसर्च अभी भी शुरू है और अभी भी इन पे रिसर्च किया जा रहा है। सो वी कैन सी इन दिस पिक्चर कि टाइप्स ऑफ डायनासोर्स आर देयर, कि बहुत सारे डायनासोर्स प्रेजेंट थे अलग अलग प्रकार के, किसी के फेदर्स थे, किसी कोई पानी के अंदर थे, देन कोई ऐसे थे जो ओनली वेजिटेरियन थे, और कुछ ऐसे थे कि जो नॉन वेजिटेरियन थे। सो इनका लाइफ किस तरीके से खत्म हुई, सो इनके पीछे एक ऐसी हिस्ट्री थी कि इनको जो सोर्स थे, क्योंकि इनका जो साइज था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, तो इनको कंजम्पशन के लिए फूड, क्योंकि एवरी ऑर्गेनिज्म नीड द फूड, एनर्जी, वी कैन, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि भाई हमको जीने के लिए हवा पानी खाने की जरूरत है, तो दे कैन ऑल्सो ईट। सो वो भी, उनको भी खाने पीने की जरूरत होती थी। तो ये इनका साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि उनको खाने पीने की जो चीजें थी वो कम पड़ती थी। सो ऐसी एक दिन आ गया कि ये एक मेक को खाने लगे, बिकॉज भूख के वजह से ये एक मेक को खाने लगे, एंड देन दे आर कंप्लीटली
completely died, वो completely खत्म हो गए. Then ऐसा भी हो सकता है कि भी कुछ particular reasons में कि वोल्केनो आया है या फिर ऐसा कोई डिजास्टर आया है जिसकी वजह से इनकी जो जनरेशन थी वो कम्प्लीटली खत्म हो गई, राइट. क्योंकि हम यहाँ जो पिक्चर्स में देख रहे हैं, क्योंकि हमको जो स्केलेटन्स ऑब्टेन हुए हैं वो जमीन के अंदर मिले एज एन फॉसिल. फॉसिल मीन्स कि जो डेड बॉडीज या डेड ऑर्गेनिजम्स होते उनके कुछ अवशेष मिलना जमीन के अंदर से, लेयर बाय लेयर. सो जब लेयर बाय लेयर खुदाई हुई तब इनके कुछ अवशेष मिले, कुछ स्केलेटन्स मिले, जिससे हमने इनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया. देन किस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर था, किसके फीदर्स थे, जो टाइप्स ऑफ डायनासोर्स थे वो हम बता पाए. सो ये सिर्फ और सिर्फ एविडेंस के बेसिस पे हुआ. सो दीज आर द सम कॉमन एविडेंस, दोज आर अवेलेबल और दोज आर स्टोर इन अ म्यूजियम. So here we completed this chapter, hereditary and evolution. So thank you for listening my lecture. अगर आपको कोई queries या suggestion है regarding this lecture, so you can comment on my comment box. But अगर आपको मेरा lecture पसंद आया है तो like और share करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही साथ में subscribe करना भी बिल्कुल ना भूले, ताकि मेरे latest video का update आपको मिलता रहे. तब तक के लिए bye bye.